السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم سیال عام ڈیولپر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک بار پھر ایران اور امریکہ کی جنگ کا بادل لٹک رہے ہیں اور ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایران نے 4 میزائل جو ہے دبئی کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا ہے، جہاں تیل کے ذخیرے بخیر کو آگ لگ گئی ہے، اور 3 جو میزائل ہیں یو اے کی طرف سے دعویٰ آ رہا ہے کہ ان کو گرایا گیا ہے پانی کے سمندر کے اندر۔ اس کے علاوہ امریکی جو 2 جہاز تھے بحری، وہ آب ہرمز کو نزدیک آ رہے تھے، ان کو بھی امریکہ کے بحری جہازوں کو ایران نے نشانہ بنایا ہے۔ اس وقت یہ خبر آ رہی ہے تو جنگ کا دوبارہ ماحول بھی گرم ہو سکتا ہے، صورتحال یہ ہے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آب ہرمز کو کھڑے ہوئے جہازوں کو حفاظت نکالنے کا پہلے اعلان کیا تھا، آج کے دن کو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کے علاوہ چوتھا نکاتی جو امریکہ کی طرف سے ڈائلاگ کا نکاتی ایجنڈا تھا وہ ایران پر پہنچ چکا ہے، اور ایران نے اس کا جواب دینے کے لیے مہلت مانگ لی ہے امریکہ کی طرف سے۔ یہ 14 نکاتی ایجنڈا پاکستان نے ایران کو پہنچا دیا تھا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس پر ہم غور وچار کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا آب ہرمز کے آس پاس جو 2 ایرانی جہاز پکڑے تھے، ان کے 15 سے زیادہ فوجی اور عملے کو بحفاظت پاکستان کے حوالے کر دیا ہے، اور پاکستان نے انہیں ایران کے حوالے کر دیا ہے۔ اس وقت کی بڑی یہ خبر آ رہی ہے، اور پی ٹی آئی میں پھر اختلافات چوٹ پر ہیں وہاں اس معاملہ میں کہ کیا ہو رہا ہے، ان پر پروگرام کے آخر حصے میں بات چیت کریں گے۔ پہلے چلتے ہیں ایران امریکہ کی جنگ کو اب 2 ماہ کے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ڈائلاگ دونوں طرف سے چل رہے تھے مسلسل۔ امریکہ کی جانب سے 14 نکاتی جو ایجنڈا تھا وہ پاکستان کو حوالے کر دیا گیا تھا کہ وہ امریکہ کا 14 نکاتی ایجنڈا ایران تک پہنچایا جائے۔ وہ اب ایران کی خبر رسائی ایجنسی اور ایران کی سرکاری میڈیا اس بات کی تصدیق کر رہی ہے ایرانی حکام کی جانب سے کہ ان کو یہ 14 نکاتی مسودہ پہنچ چکا ہے، اور اس کا وہ جائزہ لے رہے ہیں۔ تاہم ڈونلڈ ٹرمپ نے آج پھر ایک بڑا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو آب ہرمز کے نزدیک جو امریکہ کا جہاں قبضہ ہے، وہاں سے سارے جہازوں کو محفوظ سے راستہ دے کر منتقل کیا جا رہا ہے، انہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ امریکہ کی طرف سے ڈیولپمنٹ ہے، اور امریکہ کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ نے 15 ایرانی فوجیوں کو پاکستان کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ 2 جہاز جو ایران کے امریکہ نے آب ہرمز کے نزدیک اپنے کارگو جہاز تحویل میں لیے تھے، ان میں سوار جو عملہ تھا ان کو بحفاظت پاکستان کے حوالے پاکستان کی سرحدوں میں دیا گیا ہے۔ وہ اس 15 لوگوں کو پاکستان نے ایران کو حوالے کر دیا ہے۔ ان میں تمام تر جو ان دونوں جہاز کے جو عملہ تھا اور ملازم تھے، وہ سارے ان کو پاکستان نے ایران کے حوالے کر دیا ہے۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اچھی طرح بات چیت ایران سے ہو رہی ہے، مگر ایران چاہتا ہے کہ اب ایران کی طرف سے یہ بھی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ جنگ کا مکمل خاتمے کی بات ہو جائے، اور تمام تر موضوعات پر جو تمام تر باتیں ہیں وہ فائنلائز ہو جائیں اور جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تاہم ایران کی جانب سے مسلسل گھیرا تنگ اور آب ہرمز کے نزدیک امریکی 2 بحری جہازوں کو آج نشانہ بنا گیا ہے میزائلوں کی وجہ سے۔ ابھی تک وہاں کیا نقصان ہوا ہے اس کے تفصیلات آ رہے ہیں، تاہم ابھی یہ اور خبر بھی آ رہی ہے کہ دبئی کے ایبے میں 4 میزائل جو ہے ایران نے وہ فائر کر دیے ہیں، جس میں ایک کہا جا رہا ہے کہ خبر آ رہی ہے کہ بخیر نامی ایک تیل کا جو ریفائنری ہے، تیل صاف کرنے والا فیکٹری ہے، وہاں پر
आग लग गई है, जबकि ये यूए की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके 3 ईरान के जो मिसाइल थे उनको समंदर के अंदर अंदर वो है जो उन्हें तबाह कर ख़त्म कर दिया गया है। अब ये मिसाइलों के हमले कई दिनों के बाद, पुरअमन बातचीत के बाद, अब खित्ते की सूरत हाल फिर बदल रही है, क्योंकि अब ईरान की तरफ से जो आब हुर्मुज़ के नज़दीक समुद्री जो बनकड़ियाँ की गई थी, जिसकी वजह से अमेरिकी अड्डों, अमेरिकी जहाज़ों और ईरान के अमेरिकी इत्तेहादी जो यूए है उसको निशाना बनाया गया ईरान की जानिब से। ईरान मुसलसल बातचीत के लिए राज़ी है, मगर अमेरिका की जानिब से मुसलसल जो चीज़ों हैं वो जो तजावीज़ हैं या जो डिमांड्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से ईरान जो है वो बढ़ती हुई तजावीज़ को शामिल नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि जो चीज़ें पहले डायलॉग हुई थी उसी पर बातचीत हो, तो पाकिस्तान भी इस सिलसिले में कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज अब्बास अराग़ची से गुफ्तगू की है। 1 घंटे जारी मुलाकात में तफसीलन बातचीत की है, खित्ते की सूरत हाल और उसके अलावा ईरान और अमेरिका डायलॉग के सिलसिले में बातचीत हुए। और अब्बास अराग़ची के साथ इसहाक डार की बातचीत के बाद दोनों मुल्कों ने इस बात पर एतमाद का इज़हार किया कि डायलॉग के ज़रिए तमाम तर मसाइल हल हो सकते हैं। इसके अलावा जर्मनी ने भी ये ऐलान किया है कि वो दोनों मुल्क बैठकर एक तरफाई आब हुर्मुज़ को खोल दें ताकि ये तमाम मसाइल हल जो आ जाए। ताम जर्मनी कहीं भी फ़ौज नहीं भेजेगा, ना ही किसी जंग में शामिल होगा। ये जर्मनी सदर का कहना है को वो ये बड़ी डेवलपमेंट हो रही हैं यहाँ से। उधर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ये जो कहा गया है कि मज़ीद जो ईरान के 2 जहाज़ उनके कब्ज़े में ज़रूरी मरम्मत के बाद उन्हें पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। जो उसके कब्ज़े में थे वो भी, क्योंकि अमला अब छोड़ा गया है, तो वो जहाज़ भी पाकिस्तान के आइंदा कुछ घंटों में पाकिस्तान को मिल जाएंगे, फिर ईरान से वो दिए जाएंगे। इसहाक डार ने इसकी बात की तस्दीक की है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट मुल्क में ईरान और अमेरिका के हवाले से डायलॉग का सिलसिला अभी तक जारी है, मगर यूँ कशीदगी वाली सूरत हाल भी अभी बरकरार है, क्योंकि अब हमले हो गए होने शुरू हो गए हैं ईरान की जानिब से। अमेरिका बहरी अड्डे 2 जहाज़ों को निशान बनाया गया है, यूए में भी निशान बनाया गया है। अब देखते हैं कि अमेरिका की तरफ से इसका रिस्पांस क्या आता है या वहाँ से जवाब क्या आता है। तो ये सूरत हाल खित्ते की दोबारा कशीदगी सूरत हाल से भी बन सकती है। ताम सफारती सतह पर पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम ममालिक इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा जो डायलॉग का सिलसिला डेडलॉक का है उसको आगे ले जाया जाए। यूँ तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी आज स्टेटमेंट जारी की कि ईरान के साथ अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं और ताम उन्हें उम्मीद है कि तमाम तर बातचीत बेहतर अंदाज में होगी। तो ईरानी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि ईरान अमेरिका की जायज़ मुतालबात मानेगा, मगर नाजायज़ मुतालबे नहीं मानेगा। अब्बास अराग़ची और उसके अलावा पासदार फ़ौज इनकलाब के सरबराह की तरफ से, तर्जमान की तरफ से बयान सामने आया है। तो आब हुर्मुज़ को तहफ़्फ़ुज़ करना यकीनी है। ईरान का कहना है कि वो उन्हें अपनी जाग्राफी की हिफाजत करनी है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। उसके अलावा अब चलते हैं पाकिस्तान, जहाँ कई दिनों से कई प्रोग्राम में हमने आपको पहले भी आगाह किया है कि पीटीआई के अंदर अंदर इख्तलाफ आता है, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई अब जो उन्हें अपोजिशन का लीडर बनाया गया था, अब कहा जा रहा है कि वो बुशरा बीबी के कहने पर इमरान खान को कहा गया था, उसको अपोजिशन लीडर बनाया गया था। तो वो इमरान खान की सेहत के हवाले से या एहतजाजी तहरीक के हवाले से जो पीटीआई में खामोशी पड़ी है उस पर कोई एहतजाज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर अंदर इख्तलाफात हैं। जो बुशरा बीबी है उसका ग्रुप अलहदा है, उसके अलावा जो बैरिस्टर गोहर है वो अलहदा है, उसके अलावा जो महमूद खान अचकज़ई वाले हैं वो अलहदा हैं, और इसके अलावा जो दीगर जो पीटीआई के रहनुमा हैं, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी समेत दीगर लोग अलहदा हैं। तो मुसलसल
ये ग्रुपबंदी के शिकार PTI के मामलात अभी तक रुके हुए हैं, क्योंकि बानी तहरीक की आज़ादी के सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, क्योंकि पार्टी के अंदर ही अंदर इख्तलाफात हैं। उन्हें निबेरा करने के लिए अभी पार्टी में ऐसा कोई रहनुमा नहीं बचा जो रहे। खुद इमरान खान अडिया जेल में अभी तक जेल में है, क्योंकि पीछे गवर्नमेंट अब उसको कोई रिलीफ देने के मूड में नहीं है। ताहम PTI भी कोई स्ट्रीट तहरीक चलाने में के मूड में नहीं है। ताहम उन्होंने ऐलान भी तो किया था PTI की तरफ से कि वो एहतजाज और मुजाहरे करेंगे, ताहम वो मुजाहरे नहीं हो सके। प्रोग्राम के आखिर में आपको ये खबर भी, और भारत के दरमियान होने वाली जंग को 1 साल मुकम्मल हो गया है। आज कराची में एक पुरवकार तकरीब हुई है, जिसमें चीफ ऑफ कराची वो शरीक हुए हैं। बिलावल भुट्टो, गवर्नर सिंध और दीगर मिनिस्टर और वजीरान शामिल हुए हैं। बिलावल ने कहा है कि किसी की हिम्मत नहीं कि वो पाकिस्तान की तरफ से आंख उठा के देखे। उन्होंने कहा कि 1 साल कब जो पाकिस्तान ने जो जवाब दिया था वो सारे दुनिया को सारी को पता चल गया है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर सालमी पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। बिलावल भुट्टो ने मोहर्रम के हक के हवाले से सालगिरह के मौके पर ये तकरीब की खिताब करते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो बेहतरी में काम कर रही है और पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट थी। आने वाले प्रोग्राम में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।